Hello, good morning, students. Now today science class may start a chapter number 14, chemical effects of electric current. Chemical effects of electric current यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस चैप्टर में हम आज चैप्टर नंबर 14, इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ फर्स्ट पार्ट ए, most liquids that conduct electricity are solution of dash and dash. Most liquid that conduct electricity are solution of dash and dash. अधिकांश लिक्विड्स जो होते हैं, अधिकांश लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ फॉर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल, क्षार और लवण के जो सॉल्यूशंस होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थॉट ए सॉल्यूशन causes dash effect. The passage of an electric current thought a solution causes dash effect. यदि किसी सॉल्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो इस तरह का जो इफ़ेक्ट होता है वह कौन सा इफ़ेक्ट होता है? नाउ आंसर इज chemical effect. The passage of an electric current thought a solution causes chemical effects. Now next part C, if you pass current thought copper sulfate solution. If you pass current thought copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery. The process, part C, if you pass current thought copper sulfate solution. If you pass current thought copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery. यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट पास हो तो कॉपर जो है वह एक प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है, तो वह प्लेट बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट होती है? तो नाउ आंसर, राइट आंसर इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इफ यू पास करंट थॉट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery. Next, part D, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called dash. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called dash. Now right answer is electroplating. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी डिजायर्ड मेटल पर अनदर मटेरियल की एक लेयर डिपॉजिट की जाती है, तो इस तरह का जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन.
The magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? Question number 2. When the free ends of a tester are dipped on a are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? जब टेस्टर के फ्री एंड्स को एक सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है यानी डुबोया जाता है तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक निडल है वह डिफ्लेक्शन शो करती है। तो इसका कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? तो क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं? नाउ आंसर yes, the magnetic needle will show deflection when the circuit is complete the and the circuit will be completed only if the solution conduct electricity. The deflection of the magnetic needle shows that the solution is good conductor of electricity. Now answer is yes, the magnetic needle will show deflection when the circuit is complete and the circuit will be completed only if the solution conduct electricity. The deflection of the magnetic needle shows that the solution is good conductor of electricity. हाँ, मैग्नेटिक निडल जो है वह डिफ्लेक्शन शो करती है जब सर्किट कंप्लीट होता है या तो सर्किट कंप्लीट होता है या फिर जो सॉल्यूशन है आपके पास वह सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन दैट द सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस तरह मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन है वह शो करता है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वह गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ रिपीट क्वेश्चन नंबर 2. When the free ends of a tester are dipped on a solution, the magnetic needle shows reflection. Can you explain the reason? Yes, the magnetic needle will show deflection when the circuit is complete and the circuit will be completed only if the solution conduct electricity. The deflection of the magnetic needle shows that the solution is good conductor of electricity. Now next question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। नेम थ्री लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर में कॉज द मैग्नेटिक निडल टू डिफ्लेक्ट। ऐसे 3 लिक्विड्स के नाम बताइए जो कि आपको फिगर में शो किए गए उस अनुसार मैग्नेटिक निडल जो है वो क्या होती हो, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती हो। नाउ आंसर इज आपको फिगर में क्या शो किया गया है? आपको फिगर में क्या शो किया गया है कि आपके पास एक फिगर शो किया गया है जिसमें कि एक निडल एक माचिस की डिब्बे में कंपास रखा है। कंपास उसके ऊपर वायर अटैच्ड है, वायर को कवर किया गया है बैटरी से, वो बैटरी से कनेक्ट है और उसे
एक सॉल्यूशन में वायर्स को सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो इस तरह के 3 नेम्स आपको फाइंड आउट करने हैं, जो कि ऐसे लिक्विड्स के नेम फाइंड आउट करने हैं जिससे कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या होती हो, डिफ्लेक्ट होती हो। नाउ आंसर इज टेप वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Sodium chloride it means NaCl solution and hydrochloric it means hydrochloric acid यानी HCl। Now next question है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, the bulb does not glow in the setup shown in figure 14.2. List the possible reasons. Explain your answer. जिस तरह का सेटअप आपको फिगर 14.2 में शो किया गया है, उस कंडीशन में, उस सेटअप में जो बल्ब कनेक्टेड है इस फिगर में, उस सेटअप में क्या होता है, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। तो आपको लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, तो आपको पॉसिबल रीजंस पॉसिबल रीजंस फाइंड आउट करने हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, और आपको उन रीजंस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। द आंसर इज लिस्ट ऑफ पॉसिबल रीजन। कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण जो बल्ब है इस सर्किट में, जो बल्ब कनेक्टेड है वो बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहे हैं। नाउ फर्स्ट, द कनेक्शंस ऑफ द सर्किट में बी लूज। तो आपको पॉसिबल रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आपके पास, द कनेक्शंस ऑफ द सर्किट में बी लूज। हो सकता है सर्किट में जो कनेक्शंस हो, सर्किट में जो कनेक्शंस है वो क्या हो, लूज हो। नेक्स्ट, सेकेंड रीज़न, द लिक्विड में बी पुअर कंडक्टर। और जो सॉल्यूशन आपने लिया है, जो लिक्विड आपने लिया है वो क्या हो सकता है, पुअर कंडक्टर हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड रीज़न आर, थॉट द सॉल्यूशन liquid may be conducting electricity but the current produced is too small so that the filament of the bulb does not get heated and the bulb does not glow। हो सकता है कि जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, लेकिन जो उसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, बहुत ही कम मात्रा में हो। तो इसके कारण जो बल्ब का फिलामेंट है वो हीटेड नहीं हो पाता है, यानी गर्म नहीं हो पाता है। इसके कारण बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। नेक्स्ट, फोर्थ रीजन आर, सेल्स में बी यूज्ड अप। हो सकता है सेल जो लगे हैं वो क्या हो, यूज्ड अप हो, यानी खराब हुए हो। बल्ब, नेक्स्ट रीजन, बल्ब में बी फ्यूज्ड। हो सकता है जो बल्ब लगाया है सर्किट में वह बल्ब क्या हो, फ्यूज्ड हो। तो हमने पॉसिबल रीजंस फाइंड आउट किए। फर्स्ट हमारे पास था कि जो कनेक्शंस है सर्किट में वो क्या हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो लिक्विड है वो पूरा कंडक्टर हो सकता है। थर्ड रीज़न कि हो सकता है कि जो लिक्विड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो, लेकिन उसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है हो सकता है वह बहुत ही स्मॉल मात्रा में हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो। तो इसके कारण जो बल्ब का फिलामेंट है वो गर्म नहीं हो पाता है। तो गर्म नहीं होने के कारण बल्ब ग्लो नहीं करता है।
नेक्स्ट, सेल्स में बी यूज्ड अप, हो सकता है सेल्स खराब हो। बल्ब में बी फ्यूज्ड, हो सकता है बल्ब जो हो वो फ्यूज्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। A tester is used to check the conduction of electricity. Third, two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A, while it does very dimly for liquid B. You would conclude that एक टेस्टर है जिसका कि हमने एक टेस्टर है जिसका यूज़ किया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए दो लिक्विड्स में से। दो लिक्विड में एक लिक्विड को हमने लेबल किया है, लेबल ए एंड लेबल बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी में हमने एक टेस्टर के द्वारा चेक किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। इट इज़ फाउंड दैट, तो हमने देखा कि जो दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। तो हमने देखा कि जो लिक्विड ए है उसमें टेस्टर के द्वारा चेक करने पर हमने देखा कि जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लोज करता है, वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। जबकि लिक्विड बी जो है उसमें बल्ब बहुत ही डिम ग्लो करता है। यू वुड कंक्लूड दैट, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ आंसर इज लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। हो सकता है लिक्विड ए जो हो बेटर कंडक्टर हो देन लिक्विड बी के। नेक्स्ट, लिक्विड बी इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए। हो सकता है लिक्विड बी बेटर कंडक्टर हो लिक्विड ए। बोथ लिक्विड्स आर यूजुअली कंडक्टिंग। हो सकता है दोनों इक्वल मात्रा में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो। नेक्स्ट, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। और इस स्थिति में हम दोनों की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास, आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि एप्रोप्रिएट आंसर आर। तो नाउ आंसर फर्स्ट, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। तो आपको इसका सही राइट आंसर फाइंड आउट करना है। तो राइट आंसर आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी के कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर conducts electricity? If not, what can we do to make it conducting? क्या प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? इफ़ नॉट, यदि नहीं तो व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, तो आप उसे किस तरह कंडक्टिंग बना सकते हैं। डज प्योर वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? क्या प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? इफ़ नॉट, यदि नहीं, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, तो आप इसे किस तरह कंडक्टिंग बना सकते हैं। नाउ आंसर इज नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, बट प्योर वाटर कैन बी मेड कंडक्टिंग। लेकिन हम प्योर वाटर को कंडक्टिंग बना सकते हैं इफ सॉल्ट्स आर डिजॉल्व इन इट, यदि इसमें सॉल्ट्स को क्या कर दिया जाए, डिजॉल्व कर दिया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर conducts electricity? Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? The answer is no. Pure water does not conduct electricity, but pure water can be made conducting if salts are dissolved in it. प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन हम प्योर वाटर को कंडक्टिंग बना सकते हैं यदि हम इसमें सॉल्ट्स को डिजॉल्व कर दें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस, they shut up the main electrical supply for the area. Explain why they do this. In case of fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. आग लगने की स्थिति में फायरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेन सप्लाई को बंद कर देते हैं। जहाँ पर वाटर होसेज होते हैं उस एरिया के मेन सप्लाई को शट ऑफ कर देते हैं। तो वह ऐसा क्यों करते हैं? आंसर इज the water used in water hoses by firemen is not pure water. It conducts electricity. Firemen shut off the main electrical supply for the area because if the supply of electricity continues there may be high risk of electrocution due to water. The water used in water hoses by firemen is not pure water and it conducts electricity. Firemen shut off the main electrical supply for the area because if the supply of electricity continues there may be high risk of electrocution due to water. Now next question number 8. A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with the tester. He finds that the compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? कंपास निडल जो है सी वाटर में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या आप इसका रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं? नाउ आंसर इज यस, सी वाटर कंटेन्स हायर अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स देन ड्रिंकिंग वाटर। हेंस सी वाटर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. This is the reason that the compass needle deflects more in case of sea water. हाँ, sea water contains higher amounts of salts than drinking water. Hence, sea water is a better conductor of electricity. This is the reason
that the compass needle deflects more in case of sea water. हाँ, सी वाटर जो है यानी कि समुद्र के पानी में हायर अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स देन ड्रिंकिंग वाटर, यानी समुद्र के पानी में सॉल्ट्स जो होते हैं हायर अमाउंट में होते हैं देयर कंपैरिजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में सी वाटर में हायर अमाउंट में सॉल्ट होते हैं। हैंस सी वाटर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो सी वाटर होता है वो बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज द रीजन दैट द कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर। तो इस कारण जो कंपास निडल होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है सी वाटर के केस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। Answer is no. It is not safe for the electrician to carry out electrical repairs during heavy downpour. It is because during heavy downpour there is a higher risk of electrocution. Now next, question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, पहली हैड हियर दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो द कलेक्टेड सम रेन so the collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? पहली ने सुना था कि रेन वाटर जो है वह डिस्टिल्ड वाटर की कंपैरिजन में अच्छा होता है। सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन ए क्लीन ग्लास टम्बलर। उसने रेन वाटर को एक ग्लास टम्बलर में कलेक्ट किया और टेस्टर से टेस्ट किया। तो वह सरप्राइज हो गई कि जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। नाउ आंसर इज रेन वाटर इज ऑफ कोर्स एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, बट व्हेन इट कंपास थ्रू एटमॉस्फेयर rainwater is of course as good as distilled water, but when it passes through atmosphere it dissolve a lot of dirt and other impurities and becomes conducting. So when Paheli used a tester, its compass showed deflection. Rainwater is of course as good as distilled water, but when it passes through atmosphere
It dissolves a lot of dust, dirt, and other impurities and becomes conducting. So, when Paheli used a tester, its compass showed deflection. Okay, thank you.